Hello everyone, my name is Neha Srivastava. I am working as an assistant professor in Faculty of Pharmaceutical Sciences, Rama University, Kanpur. Today we will discuss the dosage form. The dosage forms which is suitable for the drugs dosage form suitable for the patients according to their routes and according to their suitability for disease treatments and diagnosis of the treatment. There are so many dosage forms and there are so many suitable routes which we administer the drugs like oral route, intravenous route, subcutaneous route, topical route, buccal route, and there are few dosage forms. We have the solid dosage form, semi solid dosage form, liquid dosage form, gaseous dosage form, and others. In the solid dosage forms, there are so many forms: tablets, capsules, powders, suppositories, and lozenges. And in the semi solid dosage forms, ointments, creams, pastes, gels, jellies, and vanishing creams. There are cold creams also, vanishing creams and cold creams. And in the liquid dosage forms, water, solution, syrups, mixtures, linctures, elixirs, and liniments. And in the gaseous dosage forms, sprays, inhalations, anesthetic gases. And in the others, surgical dressings, medical devices, and mechanical contraceptives. So first of all, we should know what is the drug. Drug is the medicament which is useful for the systemic circulation for the patient. And tablets are the solid single unit compressed dosage forms which is containing the medicaments and useful for the systemic circulations. There are so many types of the tablets like buccal tablet, effervescent tablet, sublingual tablet and oral. बहुत सारे टैबलेट्स ऐसे भी हैं जिनको हम ओरल रूट से तो लेते हैं और उसके बाद वो जो है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन रूट को पास करते हैं. मतलब फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक दो प्रोसेस होती हैं जिसमें कि फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन होता है. उस रूट से ड्रग हमारी जो है हम ओरल रूट से टैबलेट्स लेंगे और वो फिर जब पास होएंगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ओरल रूट से लेते हैं तो वो सबसे पहले एब्जॉर्ब होंगी हमारी कैविटीज़ में, एब्जॉर्ब हो करके फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी होल हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में. आफ्टर दैट वो मेटाबोलाइज होंगी लिवर में और एक्सक्रीट होंगी यूरिन के थ्रू. उसके बाद कैप्सूल्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल. हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में 2 शेल्स होती हैं, कैप एंड बॉडी. एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सिंगल बॉडी शेल होती है जिसमें कि पाउडर्स भी फिल होते हैं और ग्रेन्यूल्स भी फिल होते हैं, फाइन ग्रेन्यूल्स भी फिल होते हैं. और जब हमारी ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती हैं तो इसकी जिलेटिन जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आए या फिर फ्लूइड के कांटेक्ट में आए वैसे ही वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है और फिर जो पाउडर्स हैं वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में कुछ देर के बाद अपना एक्शन शो करती हैं. उसके बाद से इसमें जो कैप्सूल्स में है 000 is the largest size of the capsule and 5 number is the smallest size of the capsule. 5 number is the smallest size of the capsule. After that, powders. There are so many types of powders in our dosage forms like powders, topical powders, oral powders, and topical powders like we applied on the skin but there is not any contact with the systemic circulation. But oral powders which contact with our systemic circulation like liquid powder like powder syrups and and ENO, ORS. And in the topical powders there are so many: talcum powder, face powder,
there are so many powders which does not contact with the systemic circulation, but it is only applied on the skin. After that we appear, and it beautify the skin also. And there is the medicated and non medicated both. Suppositories are the dosage forms which we insert in the body cavities. एंड जो सपोजिटरीज होती हैं ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होती हैं और फिर ये अपना एक्शन शो करती हैं धीरे धीरे. ये रेक्टल सपोजिटरी, वेजाइनल सपोजिटरी, एंड मतलब जिस अकॉर्डिंग भी हमें इसकी ज़रूरत है हम इसे बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सूटेबल मोल्ड्स. एंड ये अलग अलग तरीके के भी होते हैं, अलग तरीके की शेप में भी होते हैं, जिससे कि हम इन्हें बॉडी कैविटीज़ में इंसर्ट करें और फिर वो अपना धीरे धीरे अपना एक्शन शो करें. और उसके बाद से ये जो है मेंस और वुमेंस के लिए अलग अलग आते हैं. आफ्टर दैट लोजेंजेस फॉर एग्जांपल द विक्स which we apply the Vicks lozenges if we administer in the oral route, and it releases some medicaments in very few drops. and मतलब जब हम इसे एडमिनिस्टर करते हैं तो ये थोड़ी थोड़ी देर पे अपना ड्रग रिलीज़ करती है. जैसे कि हम विक्स को एडमिनिस्टर करते हैं, जो हमारे पास विक्स की गोली हुई या फिर एलर्जेंस की विक्स की गोली हुई, जब इनको हम इनटेक करते हैं तो इनको बिल्कुल एक टॉफ़ी की तरीके से हम इन्हें खाते हैं और फिर ये अपना धीरे धीरे एक्शन शो करती हैं और फिर ये हमारे जो गट वॉल पे हैं अपना जो उसकी मेडिकामेंट्स होती हैं वो अपना एक्शन शो करेंगी और जितनी भी कफ स्पूटम की प्रॉब्लम होती है वो रिमूव आउट हो जाती है. आफ्टर दैट सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स में ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं. ऑइंटमेंट्स भी मेडिकेटेड भी होती हैं, नॉन मेडिकेटेड भी होती हैं. मेडिकेटेड में हमारी पोविडोन आयोडीन की ऑइंटमेंट्स हो गई. नॉन मेडिकेटेड में भी हैं नॉर्मली तो बहुत सारी हैं, ठीक है. क्रीम्स में हमारी वेनिशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, उसके बाद पेस्ट, टूथपेस्ट, जेल्स like there are so many gels, aloe vera gel we apply on the skin and soothing effect on the skin. After that jellies, this is also made up of the gelatin. And vanishing creams, it apply on the skin and remove scars and soothing effect on the skins. After that liquid dosage forms, water, solution, syrups, mixture, linctures, elixir and liniments. लिक्विड्स में हमारे पास जो हैं जितने भी सिरप्स हो गए, सॉल्यूशंस हो गए, सिरप्स, सॉल्यूशंस, मिक्सचर्स, सस्पेंशंस और लिंक्चर्स, एलेक्सर, लिनीमेंट्स, ये सारे ही लिक्विड डोसेज फॉर्म्स में हैं. और फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड डोसेज फॉर्म्स दो तरीके के होते हैं, बाईफेजिक डोसेज फॉर्म्स एंड मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म्स. बाईफेजिक डोसेज फॉर्म्स basically are of two phases liquids like emulsions and suspensions, and monophasic which does have the single phase. And if we will have to take the dosage form, first of all it is containing in the bottle, so we will have to shake well before use. Its indication is mentioned in all of the bottles. And there are so many syrups which contains in the ambered color bottle. It is the light sensitive product, that's why we store in the amber color bottle. After that, gaseous dosage forms in sprays, inhalations and anesthetic gases. Sprays like Volini spray, Movie spray, and it is first of all it administer or it sprays on our skin surface, and it does not affect on any systemic circulation, and it heal it repair the skin tissues and skin wounds. लाइक बहुत सारे जो चोट होते हैं, बहुत सारे घाव ऐसे होते हैं
जो कि उस पर तुरंत स्प्रे किया और वो तुरंत ठीक करते हैं। जैसे कि क्रिकेटर्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्प्रेज ऐसे आते हैं कि अगर चोट लगी है तो और उस पर हमने तुरंत उसे स्प्रे कर लिया तो वो कुछ देर के बाद आराम हो जाता है। और वॉलिनी स्प्रे, मूव स्प्रे, ये जो है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो नहीं जाते हैं, लेकिन हमारी जो स्किन है उसमें अगर कोई स्वेलिंग है या फिर कुछ पेन है तो वो उसको ठीक कर देते हैं, या रेडनेस है तो वो उसको ठीक करते हैं। उसके बाद से इनहेलेशंस, बहुत सारे एस्मेटिक इनहेलर्स भी आते हैं, जिसमें जो एक होता है ट्रांसपेरेंट कलर की कैप्सूल होती है और उसमें बहुत फाइन पाउडर्स होते हैं, वेरी माइन्यूट अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में उसमें पाउडर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो इनहेलर होता है उसमें छोटी सी कील लगी होती है, जिससे कि जब हम उसमें कैप्सूल को रखते हैं तो वो पंक्चर हो जाती है। और जब पेशेंट जो है जिसको इनहेल करना है, जब वो इनहेल करता है तो वो पंक्चर हुआ पार्ट जो है, मतलब जो होल हुआ है, उसमें से वो इनटेक होगी, मतलब वो प्रेशर के साथ जो हम एयर प्रेशर को इनहेल कर रहे हैं उसमें से वो पाउडर जा कर के हमारी थायराइड ग्लैंड पे और हमारी बक्कल कैविटी में जा कर के स्टिक हो जाएगी। जब वो स्टिक हो जाएगी तो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अपना एक्शन शो करेगी। जब धीरे धीरे अपना एक्शन शो हो जाएगी, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये बोला जाता है कि इनहेलर यूज़ करने के बाद से थोड़ा सा गर्म पानी से कुल्ला करके उसके बाद रेस्ट करना है, बिकॉज जितने की ज़रूरत है वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो एक्सेस में जो उस पर स्टिक होगा वो प्रॉब्लम कॉज करेगा। इसलिए हमेशा जितने की ज़रूरत है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी जो बचा हुआ है उसको पानी से गार्गल के थ्रू निकाल देते हैं। आफ्टर डैट बहुत सारे एनेस्थेटिक गैसेस भी आते हैं। अभी तो जो है अभी नॉर्मल लोकल एनेस्थीसिया चलती है, लेकिन पहले के टाइम पे जनरल एनेस्थीसिया चलती थी, तो उसमें लोग क्लोरोफॉर्म वगैरह का यूज़ करते थे पेशेंट की सर्जरी वगैरह के लिए। हालांकि जनरल एनेस्थीसिया उतना सेफ़ नहीं होता है, इसीलिए लोकल एनेस्थीसिया की डिस्कवरी की गई ताकि एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो एनेस्थाइज हो, पूरी बॉडी ना एनेस्थाइज हो। आफ्टर दैट अदर्स, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये सारे अदर्स में है, जिसमें सर्जिकल ड्रेसिंग्स वगैरह आ गए, मैकेनिकल डिवाइसेस बहुत सारी हैं। आफ्टर दैट मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो भी हैं, ये सारे जो हैं हमारे डोसेज फॉर्म्स, ये हमारे अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग और हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसका हम सिलेक्शन करते हैं। अब डोसेज फॉर्म सिलेक्शन के लिए भी हमारे पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं पोसोलॉजी। पोसोलॉजी हमारी जो है अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू आर सरफेस एरिया, अकॉर्डिंग टू आर जेंडर, हमारी जेंडर के अकॉर्डिंग, हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, हमारे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम डोज को डिस्क्राइब करते हैं, डोज को प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस पे कई सारे फार्मूलेज भी होते हैं। जो छोटे पेशेंट्स, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अलग है, और जो एडल्ट्स हैं उनके लिए अलग है, जो जीरियाटिक्स हैं उनके लिए अलग है। तो हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग तरीके की मेडिसिन आती हैं। लाइक जो छोटे बच्चे हैं उनको वो भाई टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर, सपोजिटरी, लोजेंजेस इनहेल तो नहीं कर पाएंगे या इनटेक तो नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए जो है सिरप्स में बना दिया। ठीक है, जैसे पैरासीटामॉल की सिरप, ओंडेम की सिरप। लेकिन जो एडल्ट्स हैं वो इनटेक कर सकते हैं, तो उनके लिए इसकी टैबलेट बना दी जाती है। आफ्टर दैट जो कई सारे फार्मूले भी इस पे आए, डिलिंग्स फार्मूले, फ्राइड्स फार्मूला, यंग्स फार्मूला, क्लार्क्स फार्मूला, ये सारे फार्मूले हैं जिनके थ्रू हम डोज को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ये सारे डोज, ये जितने भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स हैं, इन सारे डोसेज फॉर्म्स को जब हम इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं तो इन सारे का हम एक इवैल्यूएशन पैरामीटर भी चेक करते हैं। नॉर्मली तो हमें किस तरीके से मेडिसिन पेशेंट को देना है ये डॉक्टर, फार्मासिस्ट या फिजिशियन जो भी है वो सारी बता देगा, लेकिन अगर हम इसे इंडस्ट्री में बना रहे हैं तो इनके अलग इवैल्यूएशन पैरामीटर है। टैबलेट्स के अलग, कैप्सूल्स के अलग, पाउडर्स के अलग, सपोजिटरीज के अलग, लोजेंजेस के अलग, लिक्विड डोसेज फॉर्म्स के अलग हैं, सेमी सॉलिड के अलग हैं, अदर्स के अलग हैं। इफ़ हमें अगर टैबलेट्स, कैप्सूल्स में सॉलिड डोसेज फॉर्म्स का अगर हमें करना है इवैल्यूएशन पैरामीटर, तो हमें सबसे पहले तो डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस, हार्डनेस, फ्रेबिलिटी, सॉलिबिलिटी
उसका जो सॉलिबिलिटी हम निकालेंगे डिसोल्यूशन टेस्ट एपरेटस की मदद से निकालेंगे, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से। बियर्ट लैम्बर्ट लॉ को फॉलो करती है हमारी यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आफ्टर दैट उसमें जो है उसका जो हम ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी निकालेंगे। उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में कलर, ऑर्डर, साइज, शेप, उसके बाद उसमें अगर पूरे एजेस हैं तो उनको भी निकालेंगे, ठीक है। उसका कलर किस तरीके का है, उसका शेप क्या है, ठीक है। उसके बाद कैप्सूल्स के भी हैं। कैप्सूल का हम सॉलिबिलिटी तो निकालेंगे, लेकिन अगर हम उसका जो है उसकी हम फ्रेबिलिटी नहीं निकाल सकते हैं, उसकी हम हार्डनेस नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन डिसइंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, उसका हम डिसोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारे पास जो सेमी सॉलिड और लिक्विड हैं, तो लिक्विड का तो हमें सबसे पहले पीएच निकालना होता है। पीएच निकालने के बाद हम टर्बिडिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसका जो वाटर कंटेंट, हमारा जो सैंपल है उसमें वाटर कंटेंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। वाटर कंटेंट हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, बट बेसिकली कार्ल फिशर टाइट्रेशन से भी निकाल सकते हैं। कार्ल फिशर टाइट्रेशन में बेसिकली जो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होता है। इन एसिड और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये वर्क करता है बंसन रिएक्शन पे, जिसमें कि कंटेनिंग पेरिडीन होता है, आयोडीन होता है, और वो न्यूट्रलाइज करता है हमारे सैंपल को। और उसके बाद उसमें जो वाटर है वो पूरा न्यूट्रलाइज होने के बाद से कितने अमाउंट में बच रहा है वो हमें डिस्प्ले हो जाता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हमारे सैंपल का कितने % मॉइस्चर है अवेलेबल। उसके बाद से ये है गैसियस डोसेज फॉर्म्स। गैसियस डोसेज फॉर्म्स में भी हमारे पास LPC वगैरह से टेस्ट करते हैं, और ये LPC वगैरह के टेस्ट हैं, उसमें पार्टिकल काउंट्स टेस्ट करते हैं। और ये जो हमारे पास मेडिकल डिवाइसेस हैं इनका भी हम टेस्ट करते हैं, और ये देखते हैं कि ये जो हमारी मेडिकल डिवाइस है ये प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। और जितने भी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमें फ्यू एनिमल्स में इन विट्रो स्टडी, इन विवो स्टडी पूरी चेक करनी होती है। आफ्टर दैट हम इसकी क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद से फिर हम मार्केट में ही भेजते हैं इसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग वगैरह पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद, ताकि जो मेडिसिन या फिर जो भी फॉर्मुलेशन हमने बनाई हैं वो सारे ह्यूमंस के लिए या फिर जो भी उसको यूज़ कर रहा है उसके लिए सेफ़ है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।